Okay. Yes, you have a doubt, Hetvi. Sir, how to find the adjoint in this? No, how to find the cofactors in this? Okay, so the question is how we can find the cofactor, right? So सबसे पहले तो ये जो है उसका नॉर्मल जनरलाइज फॉर्म क्या रहेगा? A11, A12, A21 और A22, right? So in this case there is only four cofactors. So your first cofactor A11, which corresponds to this entry, right? You have to start with what? -1 raised to the sum of the index. ये तो सेम ही रहेगा. So A11 corresponds to 3 over here. Now you remove 3 column of the row, column and the row in which the 3 is there. So what you have left is 1. So only determinant of 1. And you know that the determinant of any single entry is just that entry itself, right? डिटर्मिनेंट जब भी किसी एक नंबर का होता है तो बस वो सिंपली वही नंबर होता है. सो -1 raised to 1 plus 1 is -1 raised to 2, that is 1, and determinant of 1 is 1, right? So A11 you'll get 1. In the same way you should find the A12. Now A12 corresponds to this entry, the second one. So you remove the row and the column in that part. So ultimately, if you remove the row and column, you'll get 2. So A12 is -1 power 1 plus 2 and the determinant of 2 only. क्योंकि रो और कॉलम डिलीट करने के बाद सिर्फ 2 ही बचता है हमारे पास. So -1 raised to 1 plus 2 is -1 raised to 3. -1 raised to 3 is -1 and determinant of 2 is 2 only, right? And first of all, let me stop these annoying people. Done. Now you cannot annotate anymore. So A12 मिल गया, A11 मिल गया, -2. A22 क्या आएगा? Oh sorry, -2, Sir, sorry. yes, हाँ, sir. A A22 is -4. okay, A22 is -4. No, sorry, A21 is -4 and A22 is 3. 3. Okay, great. So now the thing is, उसमें जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में किया था वैसे ही कि if you want to find the adjoint of A, so simply you put A11, A12, A13 and sorry, A13 का A22, A21 and A22 और उसका ट्रांसपोज, right? So if you just arrange the entries over here, that is 1, A12 का आंसर -2, -4 and 3. So इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो क्या बनेगा? 1, -2 नीचे आ जाएगा, -4 ऊपर and 3 will be there. So this is your adjoint of A. How many of you get this? Let me clear the feedback and again vote. Say yes if you understand, and if you don't understand, just tell me कि सर समझ में नहीं आया. सर हम्म. सर यही मतलब इनवर्स है, ना ना. तो इनवर्स क्या है इसमें फिर? देर इज वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट एंड इनवर्स, कीर्ति. वो बस अभी जस्ट सिखाने वाला हूँ मैं. ओके सर. हाँ. तो चलो अब इसका इनवर्स के साथ व्हाट इज द रिलेशन, वो वाला मेन टॉपिक जिसके लिए हमने एडजॉइंट ढूंढा. सडनली इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये -1 कहाँ से आया और इसका क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं. आई गेस कुश वॉज देयर कि जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था. बट नाउ इट्स टाइम टू रिवील द सीक्रेट कि जो हमने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड किया था उसकी जगह देयर इज अनदर वे आल्सो. Sir, sir, A12 will be -4 and A21 will be -2. A12 will be So -4. why?
Sir, first row, second column, and we. So, sir, the determinant, if we remove the first row and the second column, then 4 remains. 2 रिमेन्स ना. सी, फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो बचा क्या? 4. हाउ? ओ पता नहीं जी, कौन सा नशा. डिड यू सी 4? एम आई रॉन्ग एनीबडी? कैन एनीबडी हेल्प मी? या तो वो नशा करके बैठे, या तो मैं नशा कर. 1 2 वाला एलिमेंट नहीं लेना, 1 2 को निकाल के जो उसके अपोजिट रहे ना बाकी, वो वाला एलिमेंट लेना है. Sorry, sir, I wrote the matrix wrong. ओह गॉड, एंड यू आर मेकिंग मी कंफ्यूज कि मैंने कुछ गलती कर दी है. Sorry, sir. अरे इट्स ओके, होता है. बस थोड़ा महंगा नशा किया करो, सस्ता नशा मत करो, ठीक है. इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. वाह. चलो, तो इनवर्स हम देखा था हमने कि वो आपने बोला था कि एक टीडियस प्रोसेस है वो, रो ऑपरेशन करना, कॉलम ऑपरेशन करना, और फाइनल आंसर ढूंढ के लाना. राइट. सो सपोज हमें जो ऊपर मैंने अभी दिया उसी मैट्रिक्स का सपोज इनवर्स फाइंड करना है. राइट. सो क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए. एग्जांपल इज फाइंड द इनवर्स ऑफ ए विच इज इनिशियली क्या था, 3 4 2 1. राइट. So, your first step to find the inverse is to find the determinant of any given matrix. सबसे पहले उसका determinant ढूंढ लो, that is determinant of A, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं determinant of A. So in this case determinant will be 3 4 2 1. क्या आएगा? Ultimately 3 1s are 3 minus 4 2s are 8. 3 minus 8 is -5. So your determinant is -5. Now in any general case, अगर आप सोचोगे तो किसी भी प्रॉब्लम में when you have to find the inverse, there are two possibilities. The first one कि your determinant comes non-zero, मतलब कि your determinant is not zero. So in that case inverse exists. Inverse exists. And if your determinant is zero, सपोज आपने डिटर्मिनेंट ढूंढा और डिटर्मिनेंट आपको मिल गया 0, सो इन दैट केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये दो कंडीशन है. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग फर्स्ट. पहले शांति से समझते हैं कि जब हमने लेक्चर्स में बात कर रहे थे तब ये हमने देखा था कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2. तो 2 का इनवर्स क्या मिलता है, दैट इज 1/2. और ये 1/2 वाई इट इज द इनवर्स ऑफ 2, क्योंकि 1/2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग 1. दैट्स वाई 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2. राइट. जैसे ही अगर इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 3, द आंसर इज 1/3. क्यों? क्योंकि 3 और 1/3 का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 1. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, so no matter which number you take over here, you'll never get a 1, क्योंकि कोई भी नंबर का जीरोस के साथ मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज गिव्स यू 0. सो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 0 के साथ you'll get 1. So in this case we simply write 0 doesn't have any inverse. In a similar way matrices में भी ऐसा ही होता है कि if you have a two matrices, matrices में भी इनवर्स का डेफिनेशन क्या है कि सपोज यू हैव अ टू मैट्रिक्स, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट शुड बी द आइडेंटिटी. बट समटाइम इट हैपेंस कि ऐसा कोई मैट्रिक्स ही नहीं मिला. सपोज ए इज गिवन मैट्रिक्स और बी वी आर लुकिंग फॉर, तो जिसे ए बी आइडेंटिटी हो,
तो बी सपोज ऐसा कोई मैट्रिक्स मिला ही नहीं जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे आइडेंटिटी मिलता हो, मतलब देर आर पॉसिबिलिटीज कि बी मिले ही ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ रहे हो ये चीज? हाँ या ना? से यस Yes. और नॉट बाय सेइंग यस और नो, जस्ट रिएक्शन में आप जाके हाँ या ना बता दो। हु इज नॉट गेटिंग दी थिंग? लेट मी, अज्ञा, अज्ञा इज नॉट गेटिंग। वेरी गुड। क्या समझ में नहीं आया आज्ञा? सर पूरा ही सर समझ। कुछ भी समझ नहीं हाँ, आया। देखा देखा देखा, आई नो इट। नाउ आई नो माई स्टूडेंट्स वेरी वेल। सर आप क्या बोल रहे हो? एक तो रात के 8 बजे के आसपास का टाइम है, ऊपर से भूख लगी है, ऊपर से आपने ऐसे जकड़ के रखा है कि जब तक सब नहीं करेंगे तब तक अटेंडेंस नहीं मिलेगी, तो खाना खाते खाते भी आपका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे, है ना? सो फिर दिमाग में कैसे घुसेगा? कोई बात नहीं, फिर भी मैं पकड़ के रखूंगा। सी, बेसिकली अज्ञा, जैसे नंबर्स में होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 मिले तो उनको एक दूसरे का इनवर्स बोलते हैं। वैसे ही हमने लेक्चर्स में देखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब आइडेंटिटी बने तब जाके उन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स बोलते हैं। बी प्रिसाइज कि ए का इनवर्स बी को कब बोलेंगे? व्हेन ए इंटू बी इज आइडेंटिटी, राइट? इसी बेसिस पे हमने वो पूरा मेथड किया था। तो ऐसा भी हो सकता है ना कभी कि ए थोड़ा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके साथ ऐसा बी कोई मिले ही नहीं, नॉट पॉसिबल टू फाइंड सच अ केस कि ऐसा कोई बी मिले ही ना। तो ऐसा भी हो सकता है, आई एम टेलिंग यू कि ऐसा भी हो सकता है कि बी ऐसा नहीं भी मिल सकता। तो वो कब पता चलेगा कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा? तो फॉर दैट दिस इज द टेस्ट जो मैंने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू फाइंड द डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ गया तो वैसा बी बी नहीं मिलेगा। इन दिस केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का दूसरा मीनिंग ही वही है, सच अ बी डज नॉट एग्जिस्ट, बी डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? और इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब ही यही है कि बी मिलता है, ऐसा बी मिलेगा, बी एग्जिस्ट, बी एग्जिस्ट सच दैट a into b is identity ऐसा, और b does not exist such that ab is equal to identity, मतलब ab is equal to identity हो ऐसा कोई b हमको नहीं मिलता। now you are getting? yes or no? if you just say once yes, don't press it again, otherwise it will gone। अब थर्ड टाइम कर दो तो आ जाएगा। इट्स समथिंग लाइक -1 का पावर जैसा है। एक किया तो -1 रहेगा, दो किया तो चला जाएगा, देन अगेन 3 किया तो -1 रहेगा, 4 किया तो -1 चला जाएगा। Okay, so this was the first step. I'm hoping कि most of the students understood. Your next step is simply if your determinant is non-zero, जैसे कि इस केस में आ रहा है -5 है, तो अगर -5 इज योर डिटर्मिनेंट इसका मतलब इनवर्स मिलता है। तो अगर इनवर्स मिलता है तो योर नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इज योर फाइंड द एडजॉइंट। सो दिस इज योर स्टेप 1, आई एम राइटिंग स्टेप 1, डिटर्मिनेंट फाइंड करो। स्टेप 2, एडजॉइंट फाइंड करो। तो वी हैव ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास है। सी, दिस इज द पावर और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आई कैन कॉपी एंड पेस्ट। वो बात अलग है कि लास्ट वाला ब्रैकेट समहाउ कॉपी नहीं हो पा रहा है, बट आई ऑल्सो फाइंड द एडजॉइंट, राइट? नाउ देर इज a nice neat and clean formula for the inverse once you find the adjoint। एक बार एडजॉइंट मिल गया उसके बाद ए इनवर्स, सीधा ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू पुट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपली दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है, राइट? इसको आप याद रखो तो आपको ए इनवर्स इजीली मिल जाएगा। सी कैसे? लेट मी शो यू कि इन दिस केस अपने जो प्रॉब्लम था उसमें ए इनवर्स क्या मिलेगा? ए इनवर्स इज 1 अपन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला -5, तो यहाँ पे होगा -5, 1/-5. एंड देन व्हाट वाज योर एडजॉइंट? एडजॉइंट वाज 1, -4, -2 एंड 3. नाउ आपको पता है कि अगर 1/5 मैट्रिक्स के बाहर है, एंड इफ आई वांट टू पुट इनसाइड द मैट्रिक्स, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई एवरी सिंगल एंट्रीज बाय -1/5. सो 1 को अगर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई विल गेट 1 इंटू -1/5, दैट इज 1 -1/5. -4 को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 4/5. -2 को करूंगा तो आई विल गेट 2/5. एंड 3 को करूंगा तो आई विल गेट -3/5. एंड दिस इज द योर इनवर्स. अगर आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से ये सम एग्जीक्यूट करते हो, देन यू विल गेट द सेम आंसर. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस? Say yes if you understood it. Otherwise say no. ताकि मुझे पता चले कि आपको पता नहीं चला है. Only 17, 18. What about others? सो गई क्या? Vanish. You are the most regular students in online classes. Yes, Offline. sir, I like online classes. वाह वाह. तो ऑफलाइन क्लास पे क्यों नहीं आते? सर अभी से आऊंगा. देखते हैं. बेटा, यू आर नॉट प्रेजेंट इन दी ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर, सो माइट बी उसकी वजह से आपको शायद समझ में नहीं आया होगा. बट अगेन एक और सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. सर ये 1/5 कैसा लिखा है वो नहीं समझ में आया सर. दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला. यू हैव टू पुट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया ना यहाँ पे. ये रहा -5. हाँ हाँ समझ गया. हाँ, तो ये -5 ही नीचे रखा है और कुछ नहीं किया. दिस -5 कम्स फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये है. डन. ओके, ग्रेट. यस सर. चलो, तो इसके आगे वे गो फॉर दी 3/3, जो ऑलरेडी हमने जिसका एडजॉइंट फाइंड कर रखा है. ठीक है. जैसे कि ये वाला. सो ऑल ऑफ यू राइट नाउ, आई एम क्लियरिंग द फीडबैक. 3/3 का मैं एक बार आपको सम करके दिखाता हूँ. तो 3/3 के लिए दिस इज योर मैट्रिक्स, उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है. सो योर क्वेश्चन इज, find the inverse of the matrix. Wow, technology. घटिया. तो मुझे याद ही रखना पड़ेगा ये ऐसे. Sir, it is हाँ हाँ, प्लीज 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 कोई बोल दो प्लीज. थैंक यू. sir 243 हम्म -102 हम्म 031. थैंक यू सो मच. सो सर ये, इसका एडजॉइंट बोल दूं जो हाँ निकाला हाँ था. हाँ हाँ, वो भी बोल दो ताकि वी कैन डायरेक्टली राइट दैट थिंग. इसका Sir, एडजॉइंट. adjoint of A is -658 हम्म 1 2 -7 हम्म -3 -6 4. सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Okay. So now we are writing the solution. तो solution में your first step was to find the determinant. ठीक है. So let's find the determinant of A. अभी हमें पता है कि determinant can be expanded using multiple rows and column. मुझे यहाँ पे लास्ट रो पे एक 0 दिख रहा है. So expanding using the last row or even for the first column, पहली कॉलम से भी जा सकते हैं ताकि last entry will be 0. So expanding using the first column,
आई एम नॉट आस्किंग यू कि वेदर यू नो दिस थिंग, क्योंकि ये सब आप पिछले सेमेस्टर से करते आ रहे हो, तो आई एम गेसिंग कि दिस थिंग्स दैट यू नो. 2 लिखा and then delete the row which contains 2 and delete the row and column which contains 2, and then you put minus, and second entry is -1. Again you delete the row and column contains -1, तो बचा 4 3 3 1. And lastly I should write plus 0 into 2 by 2 determinant, but I know that 0 into that thing will become 0, so I'm not writing it. यहाँ पे 2 इंटू क्या बचेगा, 1 इंटू 0 इज 0, -3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस +1, सो आई एम नॉट राइटिंग +1 बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है इंटू +1 लिखने का. 4 1 ज़ा 4, -3 3 ज़ा 9, सो -6, 0 -6 is -6, -6 2 ज़ा is -12, 4 -9 is -5, and ultimately answer is -17. सो आंसर इज -17 विच इज नॉन जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट. और ए इनवर्स का फॉर्मूला रिमेन सेम. ए इनवर्स के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा. if the formula of A inverse is simply 1 upon determinant of A into adjoint of A, adjoint of A. So 1 upon determinant of A, 1 upon determinant of A is -17 into adjoint of A क्या मिल रहा था हमको, जो ऊपर लिखा है वो, the -6 5 8 1 2 -7, sorry, -3 -6 4. Now if you multiply this -1/7 into the entire matrix, you'll get the entries 6/17, -5/17, -8/17, -1/17, 2/17, +7/17, 3/17, 6/17, and -4/17. How many of you get the idea how to find the 3/3 inverse in this way? Say yes if you understood it. React yes if you understood please. So मुझे पता चले कि कितनों को पता चला है या फिर कितनों को नहीं पता चला है. If you don't understand just say no. मतलब रिएक्शन में ना बोल सकते हो आप. There is option for that. गुड गुड गुड, वेरी गुड. सो नाउ एक चीज बता दूं कि एग्जाम में हर बार एडजॉइंट पहले से नहीं ढूंढा होगा हमारे पास. सो इन द एग्जामिनेशन या फिर व्हेन आई विल गिव यू द असाइनमेंट, यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ओवर हियर. एडजॉइंट आपको ढूंढना है, राइट. हम यहाँ पे स्किप कर पाए क्योंकि हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा था एडजॉइंट. इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एडजॉइंट, राइट, मतलब नहीं दिया हुआ है कहीं पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एडजॉइंट. द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डिटर्मिनेंट, देन फाइंड द एडजॉइंट, एंड देन लास्टली पुट दिस फॉर्मूला. सपोज डिटर्मिनेंट फाइंड किया और डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, तो इन दैट केस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये लिख के सम खत्म हो जाता है वहां पे. यू डोंट नीड टू गो फर्दर. ओके, so I'm giving you the sum, ultimately last sum for this lecture 3/3 का, और still we have a time. हाँ, Sir, can we do a question from the ones that we have done via using the row operations so that it becomes clear that the matrix that we get finally is the same? yeah, sure. So but do you have that sum? Because I don't have that sum, which is which we done with the. Okay, so Yes, sir. tell me the question of that 3/3 matrix जो हमने किया था. I guess कि last lecture में मैंने first and second problem करवाए थे. सर कोई भी दे दो चलेगा, काफी कराए. हाँ हाँ करें, लेकिन अल्टीमेटली वी स्टिल हैव हाफ एन आवर. सो आई वांट टू मेक श्योर कि 2 सम होने चाहिए 3/3 के इनवर्स के फाइंड करने के. सो Okay, वन sir. वन यू टेल मी, सेकंड आई विल गिव यू बाय माई सेल्फ. सो वन एक दे Okay. दो तो आप वेरीफाई हो जाएगा.
and then second. Yes. Hmm. Sir, row by row it is 7. Okay, 7. ये वो 4. सब तो नहीं है ना जो मतलब it becomes a No, no, sir. हाँ. We have done this. Okay. 7, 4, हाँ. 5, हम्म. -8, -9, हम्म. 0, हम्म. 4, 3, 1. Okay, great. So everybody, let's start finding. सर हाँ. सर एक डाउट। सर एक्चुअली ये एडजॉइंट की जगह जो अपन ने पहले इनवर्स निकाल के देखा था उस क्वेश्चन का इनवर्स निकाल के मतलब जो ऑलरेडी इनवर्स निकला हुआ वो क्वेश्चन उसका एडजॉइंट निकाल के चेक कर सकते हैं कि सेम इनवर्स आता है कि नहीं प्रूफ के तौर पर। हाँ, कर सकते हैं। वी आर एक्चुअली डूइंग दैट थिंग ना। वो हमने ये जो क्वेश्चन दिया हेतवी ने, वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है क्लास में, मतलब इसका सर इसका इनवर्स नहीं हुआ है, इसका एडजॉइंट निकला है। 743 था आई गेस। हेतवी, ये इसका Yes, Yes, sir, sir. it was 743. Yes, sir. It was 3, sir. इनवर्स ढूंढा था ना हमने इसका। इनवर्स हाँ नहीं सर, ढूंढा ये था। सर इसका एडजॉइंट ढूंढा था, इनवर्स नहीं ढूंढा था। इनवर्स का मेरे पास दूसरा क्वेश्चन बचा हो तो नहीं नहीं सर, एडजॉइंट ढूंढा था। शी इज राइट, आ गया हु इज राइट? आ गया। सर अभी तक हमने इनवर्स तो आज ही चालू किया है ना, तो वो सिर्फ ये लोग नहीं, कैसा इनवर्स बोल रहे पहले हैं कर 7। चुके हैं। नहीं, इनवर्स अच्छा। हेतवी, वो इनवर्स हमने ढूंढा था वो बाय रो ऑपरेशन। ओके, जस्ट वेट। I'm giving I'm सर trying। मैं दे देती हूँ, क्वेश्चन मेरे पास है अभी। ना रुको, अब मैं ही फाइंड कर लेता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। I'll just give me 1 minute। I'll find it। कितने डाला मैंने? योर जूम मीटिंग इज विल एंडेड इन 10 minutes। ओके फाइन। तो 10 मिनट में ये भी बंद कर देगा। साथ ही नहीं दे रहे लोग, इसको पैसे खिलाओ कोई। वी ऑल्सो हैव टू ज्वाइन फॉर द थर्ड टाइम। हाँ, तीसरी बार ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम विच आई वॉज फेसिंग इन द सेकेंड टाइम वॉज इट वॉज टेकिंग अ टाइम कि नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू वेट अप टू 10 minutes। सो 10 minutes में आई एम गिविंग यू 2 प्रॉब्लम्स। वो 2 प्रॉब्लम दैट यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, और वो एक बार खत्म हो जाए, देन इन द लास्ट मीटिंग आई विल टेक द अटेंडेंस। आई विल वेरीफाई द अटेंडेंस। मैंने अटेंडेंस तो ऑलरेडी ले रखी है, जो जो लोगों ने सम्स भेजे हैं उनमें। तो उन उसके बाद आई आई लेट यू गो। हाँ नारायण, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर, ये लेक्चर अप्रोक्सीमेटली कितना बजे तक चलेगा? बेटा 6:30 को शुरू किया था, 8:30 तक, 2 घंटे। सर मैथ्स का टाइमिंग खाना नहीं खा पाऊंगा। सो दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू सेट द मीटिंग, ऐसा? मतलब 8 तक एंड हो जाएगा तब फिर इजी रहेगा, मतलब 8 to 8:30 के Okay, बीच में खा सकता हूँ। I'm giving you only the liberty कि you complete the sum by uh, like 12 tonight, before 12 tonight and send it me। So मैं आपको जाने दे सकता हूँ। हाँ सर, वो सम करके भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ, then only I can say कि हाँ जाओ। यार किधर गया हूँ? ओके, सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो हमने डेफिनेटली किया है। चलो मैं आपको देता हूँ। 0 -1 1, 3 -4
sorry 3 minus 3 4 and then 2 minus 3 4. ये वाला सम हमने किया था, इसका इनवर्स भी ढूंढा था, राइट? सो नाउ यू फाइंड द एडजॉइंट, इसका इनवर्स भी आप ढूंढो अच्छे से, एंड देन यू टेल मी कि whether the answers are same or not, right? सो ये फर्स्ट सम है, थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होगा, उससे पहले आई एम गिविंग यू ऑल्सो द सेकेंड सम, और वो सेकेंड सम का भी आंसर यू हैव टू सेंड इट मी। दोनों सम का आंसर एक साथ भेजना, आंसर के नीचे राइट योर रोल नंबर सो आई कैन आइडेंटिफाई कि किन का है, ठीक है? सो गो अहेड एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड वंस यू फिनिश दिस। हाँ सर इसका हमें एडजॉइंट ढूंढना है, मतलब ऐसे पूरा जो आपने 3 स्टेप वाला प्रोसेस बताया उसके हिसाब से इनके आंसर्स ढूंढ के भेजने हैं। हाँ हाँ हाँ, ये स्टेप 1 2 3 वाला जो करना है उसके हिसाब से, नॉट इन दी वे वी डिड इन दी क्लास, रो ऑपरेशन नहीं करना है। ओके सर। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अभी कुछ ही देर में मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, तो यू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस टू मैट्रिसेस एंड सेंड इट टू मी, ओके? सपोज until and unless I'm not able to generate a new link, आपको ये दोनों सम खत्म करके मुझे भेजना। वंस आई रीजनरेट द लिंक, आपको एक और बार मीटिंग में आना पड़ेगा फॉर दी वन मोर टाइम, राइट? टू जस्ट
वेरीफाई द अटेंडेंस। 8:30 के से ज्यादा नहीं होगा, 8:30 को मैं छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। सो इवन इफ योर सम इज ओवर, यू कैन होवर अराउंड, आप जा सकते हो जहाँ जाना है, आप यू कैन गो अराउंड, बट जस्ट वंस आप मीटिंग में एंटर हो जाना, ताकि वेरीफाई हो जाए आपका अटेंडेंस।